So now we start a new topic, that is autonomous system and stability. That is also related to system. So we have studied that you can solve linear system, but that theory is limited to linear system only. But in practice, you got non-linear systems, and we don't have much knowledge to find their solution. So there are many differential equations which are non-linear one, and it is not possible to find their analytical solution. So in this topic, we will study an approach which is geometrical in nature, uh, uh, which means that you cannot solve the equation, but you can tell some properties of equation. For example, you have a first order equation, so that is dy by dt equal to something. And we have studied that it is not always possible to integrate. But we know from geometry that dy by dt is the slope of solution curve. ठीक है, स्लोप. तो आप स्लोप के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन बता सकते हो विदाउट सॉल्विंग द डिफरेंशियल इक्वेशन. So likewise here, that's why I'm saying this is geometrical approach. So rather than solving the differential equation, we can tell their qualitative properties, as we did in the second order equation Sturm theory. If you recall that Sturm theory, we have not solved second order equation, but we make some prediction about जीरोज ऑफ सॉल्यूशन कि जीरोज कैसा होगा, कहाँ पे होगा, कुछ कहाँ पे सॉल्यूशन जीरो होने का मीनिंग क्या है, वैनिश होगा, कहाँ पे एक्सिस को क्रॉस करेगा, कैसे इंक्रीज करेगा, उसके बाद डिक्रीज करेगा. सो लाइक वाइज दैट. सो वी कैन टेल सम these properties are known as qualitative properties of solutions. So first in that direction, firstly I'll take autonomous system. So this is the, so in this chapter I will take two cross two systems. So we have dx by dt. I'm writing in formal variable. So dx by dt equal to fxy, and dy by dt equal to g of xy. Here f and g are continuously differentiable functions. What is the meaning of that language? Continuously differentiable. Their derivative are also continuous. तो ऑटोनोमस सिस्टम क्या बने फिर है? टी नहीं है राइट हैंड साइड में, ठीक है. एक्स एंड वाई बोथ आर फंक्शंस ऑफ टी. अगर राइट हैंड साइड में मान लो आपके पास इक्वेशन ये है, डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू टी एक्स प्लस वाई, डी वाई बाई डी टी इक्वल टू यहाँ पे मान लो साइन टी है. सो दिस इज नॉट ऑटोनोमस सिस्टम. राइट हैंड साइड हैज टी or function of t. So if you have a system, whether it is linear or non-linear,
ऑफ कोर्स इट इज नॉन लीनियर, एक्स स्क्वायर है। तो अगर ये सिस्टम है डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू एक्स प्लस वाई, डी वाई बाई डी टी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, so this is called autonomous system. Okay, so right hand side t is absent. और एक इसमें हम टर्म यूज करेंगे जब डेरिवेटिव जीरो होंगे, so those points are known as critical points. So what are critical points? Derivatives are zero, or you can say f and g they are zero. इक्वल तो नहीं है वैसे, दैट इज वेग, f इक्वल टू जीरो, g equals to zero, or you can say dx by dt equal to zero or dy by dt equal to zero. So by solving these two equations, you can find critical points of the system. So firstly, I'm starting with linear system. तो इसमें टर्म है द फेज प्लेन, जो ज्योमेट्रिक फिगर होगा उसको हम बोलते हैं फेज प्लेन, फेज प्लेन फॉर लीनियर सिस्टम. So for simplicity, we consider 2 cross 2 system. आप कैसे भी लिख सकते हो, x वेरिएबल में लिखना चाहो, y में लिखना चाहो, नोटेशन पे नहीं जाना. ठीक है, जो x है वो क्या है, x1 x2. तो क्रिटिकल पॉइंट कैसे मिलेंगे आपको, बाय सॉल्विंग ax इक्वल टू जीरो. ठीक है, dx डेरिवेटिव जीरो बन जाए, ax इक्वल टू जीरो. सो सच पॉइंट्स, चलो इसको पूरा लिखते हैं अगले पेज पे. The points where right hand side equals to zero. अब डेरिवेटिव जीरो है तो इसका मीनिंग क्या होगा, कांस्टेंट होगा. दे कॉरेस्पॉन्ड्स टू कांस्टेंट सॉल्यूशंस. कांस्टेंट सॉल्यूशन होने का मीनिंग है dx बाई dt जीरो. यहाँ आप x1 x2 कह रहे हो कि x1 में कोई चेंज नहीं है, x2 में कोई चेंज नहीं है, तो इसका मीनिंग है वो कांस्टेंट है. सो दे कॉरेस्पॉन्ड टू कांस्टेंट सॉल्यूशन, और इनको हम इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन भी बोलते हैं इनको, इक्विलिब्रियम सॉल्यूशंस. or and more generally and are often called critical points. Okay, corresponding to constant solution. अब देखिए ax इक्वल टू जीरो है, so if we assume that a is non-singular, means determinant of a non-zero, so this implies zero is the only solution, is the only critical point. Homogeneous system है ना,
If determinant non-zero, so you will always get zero solution. तो अब जो ऊपर मैंने हेडिंग लिखा है, जो फेज प्लेन, वो क्या चीज है? सो ए सोल्यूशन ऑफ द सिस्टम जो भी सोल्यूशन होगा x, that which will be function of t, that satisfy the differential equation, of course, satisfy the differential equation. Such a function, मैंने x को क्या लिखा है, दो कंपोनेंट में x1 x2, ठीक है. So such a function can be viewed as a parametric representation in the x1 x2 plane. So this x1 x2 plane is called phase plane. And a representative set of trajectories is called phase portrait. अब फेज पोर्ट्रेट क्या है? हम उसका स्केच बनाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट स्केच, सोल्यूशन की कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा, कैसे जाएगा, इंक्रीज करेगा. तो ये जो रिप्रेजेंटेटिव सेट होगा, इनको हम बोलेंगे इनको हम बोलेंगे, इन ट्रजेक्टरी को हम बोलेंगे फेज पोर्ट्रेट. और जो प्लेन बनेगा x1 x2, दैट इज कॉल्ड फेज प्लेन. ठीक है. दैट मे हैव सम फिजिकल सिग्निफिकेंस. dx by dt कैन बी, अगर x डिस्प्लेसमेंट है तो dx by dt वेलोसिटी होगा. यू कैन गिव सम फिजिकल सिग्निफिकेंस टू देम. तो एक एग्जांपल ले रहा हूँ. सो व्हाट वी डू, practically we find critical points by solving x dash equal to 0. Okay, then we will make a rough sketch of solution curve in x1 x2 plane. That plane is known as phase plane. So without solving, we will make some prediction or qualitative understanding of the behavior of solution. तो पहले मैं डिटेल में एग्जांपल ले रहा हूँ, उसके बाद एक शॉर्टकट बताऊंगा, उस शॉर्टकट से सारा हो जाएगा. यू कैन डू इन क्विकली. तो फर्स्ट एग्जांपल है, ऑफ कोर्स लीनियर तो हम सॉल्व कर लेते हैं, देन वी विल मूव टू सम नॉन लीनियर सिस्टम. सो अच्छा, उससे पहले एक डेफिनेशन है स्टेबिलिटी का, दैट आई कैन गिव. अच्छा, इसमें चलो पहले स्टेबिलिटी का डेफिनेशन लिख लेते हैं. व्हाट इज स्टेबिलिटी? So stability means stability of an equilibrium point. Equilibrium means that solution starting that solutions starting close enough
to the equilibrium point. इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन सा है, जो क्रिटिकल पॉइंट है आपका, to the equilibrium point remain close forever. स्टेबिलिटी मतलब दूर नहीं जाना, उसके पास ही रहना है, ठीक है। एक और टर्म है, ये तो स्टेबिलिटी था, एक और टर्म है असिम्प्टोटिकली स्टेबल। असिम्प्टोटिकली स्टेबिलिटी, so this means that solutions that start close enough to equilibrium point, short में लिख रहा हूँ equilibrium point, not only remain close enough, but also eventually converge to the equilibrium। यानी कि एक तो है कि आसपास रहना है उसके, है ना, आसपास रहेंगे ये सोल्यूशन। दूसरा है कि आसपास नहीं, उसको अप्रोच करेंगे, ऐसे कन्वर्ज करेंगे, ठीक है। तो अगर आसपास रहें, स्टेबिलिटी दोनों ही है, सो दे विल रिमेन क्लोज है ना, सो दे आर, दैट इज स्टेबल, ठीक है। और एसिम्प्टोटिकली का मीनिंग है स्टेबल तो है, बट दे विल स्टार्ट टू कन्वर्ज टू इक्विलिब्रियम पॉइंट। So what is stability? So this means that if t is increasing, अगर t आप टाइम कहते हो, टाइम बढ़ेगा तो solution दूर नहीं जाएगा, पास ही रहेगा, okay? So if the solution go away, that is unstable. If the solution approaches to critical point, then it is asymptotically stable. But if the solution stays nearby but not approaching, then it is known as stable, normally stable. Unstable का meaning है you are going away. So now I am taking an example. इसको अब लीनियर है तो हम सॉल्व भी कर सकते हैं। So question है sketch the phase portrait. Sketch the phase portrait for system। अब जरूरी नहीं कि y में हो, मैं x में भी लिख सकता हूँ, ठीक है। Sketch the phase portrait, discuss the behavior of solution as t goes to infinity। तो सबसे पहले आपने शुरू करना है आइगन वैल्यू से। सो फर्स्टली फाइंड आइगन वैल्यूज of matrix A, coefficient matrix, ओके। अब करना फाइंड -1 और 3 है।
eigenvalues are. Then find corresponding eigenvectors. Eigenvectors are, फर्स्ट के कॉरस्पॉन्ड है 1 -2, सेकंड के कॉरस्पॉन्ड है 1 2. ओके, then you can write solution, general solution. ये आएगा C1 V1 e power lambda 1 t plus C2 V2 e power lambda 2 t, यानी कि C1 V1 है 1 -2 e power -t plus C2 e power 3t 1 2. So if you write component wise, let us say x को आप ले लो x1 x2, तो फर्स्ट कंपोनेंट होगा सॉल्यूशन का C1 e power -t, सेकंड कंपोनेंट सेकंड वाली रो -2 C1 e power -t plus 2 C2 e power 3t. So what will happen if t goes to infinity? तो सॉल्यूशन में आइगन वेक्टर तो कांस्टेंट हैं, दो चीजें हैं यहाँ पे, e power lambda t. If lambda is positive, then as t goes to infinity, this will goes to infinity. If eigenvalue is negative, then that will converge to 0. तो अगर आइगन वैल्यू पॉजिटिव है, you will go away. If eigenvalue is negative, then you are going near. तो यहाँ पे भी मेन, अब आइगन वेक्टर तो मल्टीपल होंगे, ठीक है, ये तो मल्टीपल ही है ना, इतने टाइम v1 टाइम्स e पावर, तो e पावर कंट्रोल करेगा सॉल्यूशन को, e की पावर समथिंग क्या होगा. सो व्हाट विल हैपन इफ t गोस टू इनफिनिटी? अब इन पे भी डिपेंड करेगा C2 पे. अगर C2 पॉजिटिव है, then x1 goes to infinity, x2 also goes to infinity. If C2 negative है, then x1 goes to minus infinity, x2 also goes to minus infinity. And if you want to find a relation between x1 and x2, तो फिर आपने इनको सॉल्व करना है, x1 by x2, रेशियो निकालना है, C1 e power minus t, C2 e power 3t minus 2 C1 e power minus t 2 C2 e power 3t. ओके, क्योंकि हमने इनको ड्रॉ करना है x1 x2 प्लेन के अंदर, ठीक है, तो इससे क्या पता लग जाएगा आपको, x1 x2 के बीच में रिलेशन कब, when t goes to infinity.
तो t टेंड्स टू इन्फिनिटी में क्या होगा, लिमिट लगा के देख लो इनको, t टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये तो जीरो बन जाने हैं, ये कैंसिल होके e पावर 3t भी कैंसिल हो जाएगा, c2 कैंसिल 1/2 बन जाएगा। ठीक है, सो दिस मीन्स as t tends to infinity we have, इसको हम बोलते हैं लॉन्ग टाइम बिहेवियर। सो x1 x2 converges to 1/2, या आप ये कह सकते हो x1 approaches to 1/2 x2, अप्रोच कर रहा है, असिम्प्टोटिकली बोलेंगे इसको, एसिम्प्टोटिकली। ठीक है, अगर t टाइम वेरिएबल है तो फिर तो आपने सिर्फ इसको प्लस इन्फिनिटी की साइड ले जाना है, बट हम फिक्स नहीं कर रहे कि t टाइम वेरिएबल ही है, t कैन बी एनीथिंग। सो नाउ व्हाट हैपेंस इफ t गोज टू माइनस इन्फिनिटी, ये केस भी हो सकता है। फिर आपने x1/x2 निकालना है, तो आप देखना ये माइनस हाफ बन जाएगा, फिर एक ही पावर ये वाले बचेंगे, जो नेगेटिव होगा तो ये वाला फर्स्ट वाला बचेगा, दिस वन। ठीक है, तो ये माइनस हाफ बन जाएगा, तो आप लिखोगे x1 कन्वर्जेस कन्वर्जेस टू -1/2 x2। ठीक है, ये तो हो गया सॉल्यूशन का बिहेवियर, जो एक्चुअली सेकंड पार्ट का आंसर है ये, जो हमने पूछा था ना, डिस्कस द बिहेवियर ऑफ सॉल्यूशन एज टी टेंड्स, इसको प्लस माइनस कर देना चाहिए, प्लस माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, यानी कहने का मीनिंग है एक सॉल्यूशन दूसरे का आधा हो जाएगा नेगेटिवली, और दूसरे में क्या सर होगा, इसको एक सॉल्यूशन दूसरे का आधा। सर इसको लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी x1/x2 लिख सकते हैं? हाँ हाँ, जैसे मर्जी लिखो, ठीक। उल्टा भी लिख सकते, उल्टा कह रहे हो x2/x1। नो सर, जस्ट लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी। वो साथ में ये लिखने के लिए कह रहे हो। यस सर, फिर हाँ टेंस की जगह इक्वल कर देंगे ना। हाँ, लिख सकते हो। ठीक। यूजुअली डिफरेंशियल में हम ऐसे ही लिखते हैं, कन्वर्ज मतलब इस टाइप से। ठीक है, अब जो फेज पोर्ट्रेट बनाने कैसे हैं, फेज पोर्ट्रेट आपने एक प्लेन बनाना है। ठीक है, एक x1 एक x2, और आप क्रिटिकल पॉइंट निकाल सकते हो, क्रिटिकल पॉइंट्स you can check A is non-singular, so critical point x dash equal to ax equal to 0, so x equal to 0, so this is the critical point origin। अब जो आपके सॉल्यूशन थे, अब x1 है वो क्या था, v1 e पावर लैम्डा 1 t, और x2 क्या है आपका v2 e पावर लैम्डा 2 t। अब x1 वेक्टर है, v1 वेक्टर है, x2 वेक्टर है, v2 वेक्टर, ये तो नंबर आएगा e की पावर समथिंग, तो स्केलर है ना, ये तो नंबर है, मल्टीपल है, यानी कि ये तो कहने का मीनिंग है x1 और v1 का डायरेक्शन सेम होगा, मतलब एक मल्टीपल होगा, उसके साथ एक मल्टीपल भी होगा। अगर हम डायरेक्शन की बात करें, मान लो ये 2 आ गया तो x1 क्या होगा, 2 टाइम्स v1 हो जाएगा।
अगर ये e की पावर लैम्डा 2 3 आ गया तो x2 क्या हो जाएगा 3 टाइम्स v2। ठीक है, तो यानी कि उसी डायरेक्शन में ये वेक्टर वेक्टर होंगे। तो जो आपकी आइगन वैल्यू जो थी, अब इनको आइगन वैल्यू लिख लो। आइगन वैल्यू हमारे प्रॉब्लम के अंदर था -1। सो व्हाट आर आइगन वैल्यू, इनको मैं दोबारा से लिख रहा हूँ। आइगन वैल्यू -1 और आइगन वेक्टर था आपका 1 -2। दूसरी आइगन वैल्यू आपका था 3 और आइगन वेक्टर था 1 2। तो इनकी लोकेशन ट्रेस करो ग्राफ के अंदर, ये कहां पे होंगे बता सकते हो इसको? वेयर विल बी 1 -2 रफली? 1 -2 लोकेट कर सकते हो ग्राफ में? नहीं, 1 -2 समवेयर हियर। किसके कॉरस्पॉन्डिंग है ये? नेगेटिव वाले का। आप एक लाइन ड्रॉ कर दो यहां से। अब ये नेगेटिव है, e की पावर माइनस समथिंग। अब e की जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा जो सॉल्यूशन होंगे वो इसकी साइड जाएंगे, ओरिजिन की साइड। तो एरो लगा दो वहां पे। ठीक है, ये अब हमने क्या लिखा है, v1 वेक्टर लिखा है हमने यहाँ पे। अब v2 की डायरेक्शन क्या होगी? v2 की डायरेक्शन क्या होगी? 1 2 1 2 यहाँ पे होगा कहीं पे सर जो सॉल्यूशन। हाँ जी, एक बार ये बताना, ये लाइन जो ड्रॉ किया सेंटर से पास होते हुए, ये कैसे की है आपने? ये ये मैं डायरेक्शन बता रहा हूँ उस वेक्टर की। ये 1 2 वेक्टर होगा। डायरेक्शन नहीं सर, डायरेक्शन पता चल गई। ये जो ओरिजिन से पास होते हुए आप सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में एक लाइन ड्रॉ ओरिजिन की है। क्रिटिकल पॉइंट को हम अप्रोच कर रहे हैं, उस पे जा रहे हैं, तो उससे एक लाइन ड्रॉ करके उस पे ओरिजिन पे जा रहे हैं हम। ओरिजिन पे जा रहे हैं हम, क्रिटिकल पॉइंट पे, जो भी क्रिटिकल पॉइंट जहां भी होगा, ये हमारे केस में ओरिजिन है, हम ओरिजिन को अप्रोच कर रहे हैं। बट ये स्ट्रेट लाइन नहीं होगी, बीच में ये ऐसे भी हो सकती है, वो मैं सिंबॉलिक है ये। अब सिर्फ हमें डायरेक्शन देखना है इससे। डायरेक्शन, अब v2 की डायरेक्शन क्या है? 1 1 2 ये यहाँ पे है। आइगन वैल्यू कॉरस्पॉन्डिंग 3 है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्यूशन में कंपोनेंट क्या होगा? e पावर +3t होगा। अब +3t का मीनिंग क्या होगा? आउटवर्ड डायरेक्शन। आउटवर्ड, तो आपने दूर ऐसे कर देना है। सो यू आर गोइंग अवे। सर एक बार समझा दो, नहीं आया समझ। क्या नहीं समझ आया? सर ये पूरा जो ग्राफ बनाया आपने, कैसे क्या किया? पहले आपने फर्स्ट आइगन वेक्टर की लोकेशन लिखनी है प्लेन में। ठीक है, उससे उसको क्रिटिकल पॉइंट से ज्वाइन करने वाली लाइन बना दो दोनों साइड में। क्रिटिकल पॉइंट आपका ये है, ओरिजिन है क्रिटिकल पॉइंट। ड्रॉ ए लाइन ज्वाइनिंग दैट वेक्टर टू ओरिजिन, दोनों साइड एक्सटेंड कर दो। फिर हमने डायरेक्शन बतानी है। ये डायरेक्शन क्या बता रही है कि जो सॉल्यूशन कंपोनेंट होगा इसके कॉरस्पॉन्डिंग, वो होगा e पावर -t। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा तो वो सॉल्यूशन टुवार्ड्स जाएंगे, टुवार्ड्स द क्रिटिकल पॉइंट, उसको अप्रोच कर रहे हैं, एसिम्प्टोटिकली स्टेबल होगा ये। फिर आप दूसरा वेक्टर लिखो 1 2, x पे 1 जाओ, ऊपर 2 जाओ, रफली कह रहा हूं 2 जाओ। इसके कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू 3 है। 3 जो है वो पॉजिटिव है, सॉल्यूशन कंपोनेंट होगा e पावर 3t। व्हेन t गोज टू इंफिनिटी,
ये हमें दूर लेके जाएगा, तो ये अनस्टेबल वाला है। अच्छा ठीक है सर। और इन बिटवीन कुछ होगा, जो इन बिटवीन मान लो कोई सोल्यूशन ऐसे आ रहा है, अब हमें ये भी पता है अगर कंपैरिजन करेंगे तो एक कंपोनेंट e पावर माइनस टी है, एक पावर 3t है, तो कौन बड़ा होगा? जैसे t, जब t बड़ा होगा तो बड़ा कौन सा होगा? ई पावर 3 e पावर 3t। तो कोई सोल्यूशन अगर ऐसे आ रहा है तो वो कुछ टाइम के बाद क्या होगा, वो इसकी डायरेक्शन में जाना शुरू कर देगा, क्योंकि ये बड़ा है। और यहाँ पे भी कोई सोल्यूशन ऐसे जाएगा तो वो बड़ा कंट्रोल कर लेगा, वो इसकी साइड में जाना शुरू कर देगा, e पावर 3t वाली साइड में। और कोई सोल्यूशन मान लो यहाँ से जा रहा है, वो भी इसकी साइड में हो जाएगा। ठीक है, कोई सोल्यूशन यहाँ से जा रहा है, वो भी इसकी साइड में हो जाएगा। तो इस स्केच को, जो सॉल्यूशन के बिहेवियर को शो कर रहा है, इस ग्राफ को हम बोलते हैं फेज पोर्ट्रेट। और ये जो कर्व हमने शो किए हैं, रफ से कर्व शो किए हैं, ये जो एरो कर्व हैं, दीज आर ट्रजेक्टरीज। सो इफ द सॉल्यूशन गो अवे, जैसे ये इसकी डायरेक्शन में जो सॉल्यूशन जा रहे हैं, दे आर अनस्टेबल। बट अब क्योंकि e पावर 3t कंट्रोल करेगा, अगर t टाइम वेरिएबल है तो e पावर 3t कंट्रोल करेगा। So if solution approaches the critical point, it is asymptotically stable. If it is going away, it is unstable. And if it is approaching, then it is known as asymptotically stable. तो अब हमारे पास केसेस बनेंगे आगे। केसेस क्या बनेंगे कि अब मैं सारे केस इकट्ठे करूंगा आगे एक ही। अब रफ हमारा स्केच क्या बना, मतलब वर्किंग स्ट्रेटजी क्या बनेगी आपकी? फर्स्ट स्टेप है फाइंड आइगन वैल्यू। अब आइगन वैल्यू में फर्स्ट केस क्या होगा, रियल हो सकती है। अब रियल में भी आगे फर्दर सब केस क्या बनेंगे? रियल में क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? बोथ नेगेटिव, बोथ पॉजिटिव, एंड वन केस दैट वी जस्ट स्टडीड, वन नेगेटिव, वन पॉजिटिव। ठीक है जी। अब दूसरा केस क्या हो सकता है? रिपीटेड आइगन वैल्यू। इसमें क्या पॉसिबिलिटी बनेगी? 2/2 भी स्टडी कर रहे हैं हम, हैं? क्या पॉसिबिलिटी बनेगी रिपीटेड में? या तो नेगेटिव या नेगेटिव होंगी, पॉजिटिव। सेम ही है ना, नेगेटिव होगा या फिर पॉजिटिव होगा। एंड थर्ड केस कॉम्प्लेक्स आइगन वैल्यूज। क्या पॉसिबिलिटी बनेगी? फिर अब कॉन्जुगेट इसमें उस पर डिपेंड करेगा। हमने देखा होगा आपने, ई पावर अगर अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा है तो ई पावर अल्फा टी आता है, और बीटा में तो कॉस साइन आते हैं। तो कॉस साइन तो बाउंडेड होते हैं, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ई पावर कंट्रोल करेगा ये, ई पावर अल्फा। सो इन कॉम्प्लेक्स आइगन वैल्यू वेयर रियल पार्ट इज, since real part will give you e power alpha t, so where real part is, real part की तीन पॉसिबिलिटी बनेगी आपकी, that can be negative, real part can be positive, and that can be 0. So now we will provide example of each case. So in fact we will study 3, 5, 8 examples. तो अभी हमने शुरू किया था तो एक एक दो कर लेते हैं अभी।
अब मैं क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, फिर मैट्रिक्स लिखता जाऊंगा, ठीक है। तो पहला केस है रियल आइगन वैल्यू बोथ नेगेटिव। तो मैट्रिक्स में ऐसा ले रहा हूं जिसकी आइगन वैल्यू दोनों नेगेटिव है। सो टेक, इसको देख के बता सकते हो आइगन वैल्यू बिना सॉल्व किए हैं? -3 -2। डायगोनल एंट्री होगी ना। तो पहली आइगन वैल्यू -3 है, कोरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर भी निकालना है आपने। अच्छा वो तो निकालना ही है वन इंटरेक्शन के लिए। फिर -2 और 0 1, ठीक है जी। तो v1 v2 की डायरेक्शन देखिए, 1 -3, सो दिस इज फेज पोर्ट्रेट। v1 1 -3, सो अब क्रिटिकल पॉइंट निकालना है पहले। अब इसका डिटर्मिनेंट सिस्टम क्या बनेगा? डिटर्मिनेंट कितना आएगा इसका? 6 आएगा। 6 आया सर। नॉन जीरो है तो क्रिटिकल पॉइंट 0 0 ही है इसका। 0। ये क्रिटिकल पॉइंट है। तो डायरेक्शन बताइए 1 -3 कहाँ होगा? 1 यहीं कहीं होगा। ये आइगन वैल्यू कौन सी है आपकी? -3। क्रिटिकल पॉइंट से ज्वाइन करने वाली लाइन दोनों साइड एक्सटेंड, नेगेटिव है। सॉल्यूशन कहाँ जाएंगे? टुवार्ड्स द क्रिटिकल पॉइंट। दूसरी आइगन वैल्यू, दूसरा आइगन वेक्टर 0 1, 0 1 यहाँ पे होगा। तो ये तो वही हो गया, वाई एक्सिस ही हो गया। ये भी नेगेटिव है, सो टुवार्ड्स द ओरिजिन। अभी दोनों ही नेगेटिव हैं तो सॉल्यूशन कैसे होंगे? सर x एक्सिस x1 होगी। स्टेबल। क्या? ये x1 होगा। अच्छा, अब ये दोनों ही नेगेटिव हैं। e पावर -3t, e पावर -2t। when t will be large, so every solution will tends towards the origin। तो आप कोई भी सॉल्यूशन ले लो, वो सिंबल 2 3 एक्स्ट्रा शो कर देने आपने। कोई भी सॉल्यूशन, मान लो कोई ऐसे जा रहा है सॉल्यूशन, मेरी स्केचिंग थोड़ी खराब, कोई ऐसे सॉल्यूशन जा रहा है तो वो भी घूम फिर के यहीं पहुंच जाएगा थोड़ी देर बाद। कोई सॉल्यूशन यहाँ से कैसे जा रहा है, ऐसे बट ऐसे चला जाएगा टुवार्ड्स द ओरिजिन। तो कौन सा हुआ ये केस? स्टेबल। स्टेबल। क्रिटिकल पॉइंट इज एसिम्प्टोटिकली होगा, हैं? यस सर, कन्वर्ज कर रहा है। हाँ, एसिम्प्टोटिकली। और क्वेश्चन इसमें कई बार ये पूछ लेते हैं कि शो एटलीस्ट 3 4 ट्रेजेक्टरीज, ठीक है। तो ये कितनी बनी है? जैसे अगर आप काउंट करो तो एक ये वाली लाइन होगी, 2 तो वो बनी गई है, 2 और 2 आपने और करी है ना, 4 होंगी टोटल। तो इस टाइप से बनाना है, बस आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। एक आप बताइए सेकंड केस, रियल आइगन वैल्यू both positive, so I am taking a matrix with positive eigenvalue. You can check eigenvalues are 1, eigenvector are multiple of 2 1, second eigenvalue is 3, eigenvector are 1 1। बताओ कैसे बनाएं? 2 1 की डायरेक्शन कैसे जाएगा ये? Say this is x1, say this is x2। हाँ जी,
2 1 2 1 यही कहीं होगा। ये कॉरस्पॉन्डिंग है लैम्डा इक्वल टू 1, पॉजिटिव है अवे, देन लैम्डा टू 3 1 1, तो 1 1 ये थोड़ा ध्यान रखना कि 1 1 है तो ऊपर बनेगा ना, यहाँ पे कहीं होगा ना, ऐसे जाएगा ये नहीं, लैम्डा इक्वल टू 3 दैट इज आल्सो गोइंग अवे। बड़ा कौन सा होगा इसमें? 3t है? वो 3 वाला lambda 2 equals to 3। तो मान लो कोई सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट हुआ, इक्विलिब्रियम से स्टार्ट हुआ, तो कैसे जाएगा फिर वो? मान लो कोई सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट हुआ, मान लो यहाँ से, तो सर towards 3 lambda equals to 3 जाएगा। तो 3 वाली लाइन मतलब ऐसे ऐसे बन जाएगा ये। और कोई मान लो ये छोटे वाले के पास, इसके पास जा रहा है, बड़े की लाइन कौन सी है, वो क्रॉस नहीं करेगा, सॉल्यूशन यूनिक होगा, क्रॉस नहीं करेगा ये कुछ ऐसे इस साइड को जाएगा, कुछ आगे जाएगा, ये हो सकता है ऐसे आगे जाए, ठीक है, उसके बाद ये 3 वाले के पास आ जाएगा, उसको कन्वर्ट करना शुरू कर देगा, एंड ऑल आर गोइंग अवे। सो दिस इज so critical, what you say, critical point is unstable, critical point is unstable, it's a critical point ये हम वाली लिखना दोबारा है, समझाना कैसे बनाई ये वाली ट्रेजेक्टरी। only critical point is 0 है। तो ये जो लास्ट वाली बनाई ना वो थोड़ा समझाना दोबारा मैंने से। कोई सॉल्यूशन लिया है ना, आप ये फैक्टर देगा 3e⁻³ और ये देगा e⁻t, e⁻, छोटे वाले के पास कोई सॉल्यूशन ले लो, जैसे ये मैंने छोटे वाले के पास लिया है, छोटे वाले लाइन की साइड में जा रहा है ना, ये इसकी साइड में जा रहा है, ठीक है, बट होगा क्या, क्योंकि ये कंट्रोल दूसरे वाला कर लेगा, ई बड़े वाले की लाइन कौन सी है, रही इधर नीचे भी जा रही है ना, तो कोई तो जैसे पहले किया हमने कि मतलब टी की वैल्यू ग्रेटर पुट करेंगे, ज्यादा वैल्यू पुट करेंगे तो ज्यादा के लिए जरूर क्या देखना है, बड़ा ही देखना है कि बड़ा, मतलब हम चेक क्या कर रहे हैं, जब टी बहुत बड़ा होगा तो सोल्यूशन करो कहाँ को जाएंगे, ये देख रहे हैं हम। तो फिर ऊपर को नहीं जाने चाहिए वो, मतलब इन्फिनिटी की तरह, कौन सा ऊपर की तरह नहीं जानी चाहिए, मतलब दोनों लैम्डा साइड, इक्वल्स टू 1 है तो दोनों साइड, ऊपर। और यूनिकनेस की वजह से इनको क्रॉस नहीं करना, ट्रैजेक्टरी को क्रॉस करने का मीन तो 2 सॉल्यूशन हो गए ना एक पॉइंट पे। एज एन एग्जांपल लिया है हमने, इसके पास लिया है, इसके पास हो तो दूसरे की डायरेक्शन में चला जाएगा, बड़े वाले की डायरेक्शन ये भी तो है ना, नीचे भी है, ओके सर। एग्जाम्पल लिए हैं, ऐसा मतलब ऊपर वाले के आप यहाँ पे कहीं लोगे तो ऐसा भी हो सकता है, कुछ इधर जा रहा है तो ऐसे भी हो सकता है, वो इसके पास जा सकता है, दिस इज जस्ट एन एग्जांपल, ठीक है। क्रॉस करने का मीनिंग है एक पॉइंट पे 2 सॉल्यूशन है, वो नहीं है, वो फिर अलग चीज है। सो व्हाट इज फेस पोर्ट्रेट? सो दिस sketch in which you are showing behavior of solution for large T, this rough sketch is called phase portrait, और इवन अगर आप आगे पढ़ोगे, मैटलैब यूज करोगे तो इनके सॉफ्टवेयर भी हैं ड्रॉ करने के लिए इनको, सो सॉफ्टवेयर तो बहुत पॉइंट लेगा, सो you can draw phase portrait by using programming as well. और थर्ड केस है आपका that we will study tomorrow. थर्ड वैसे हमने स्टडी कर ही लिया, रियल आइगन वैल्यू विद अपोजिट साइन, बट वी विल टेक वन मोर एग्जांपल. So when we draw many sketches, you will get familiar. Then you will say that this is very easy topic.
Of course, for linear it is easy, but for non-linear it is not easy topic. Okay, so we have started qualitative behavior of solution for linear system. So firstly, you need to find critical points by solving ax equal to 0. तो determinant of a निकाल लो आप. Critical point कैसे निकालना है? Homogeneous system है. Find determinant of a. If it is non-zero, then only critical point is 0, 0. Okay. Then find eigenvalue and corresponding eigenvector, and then draw the direction of eigenvector. If eigenvalue are positive, you are going away. If eigenvalue are negative, you are going towards the critical point. Okay, so I think it's enough. I'll stop now. Any query? सर आपने यहाँ YouTube वीडियोस डिलीट कर दी, मतलब इसकी डाली नहीं हुई 5th चैप्टर और सिस्टम ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की? कौन सी लीनियर इक्वेशन?